आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। वो हमारे दैनिक जीवन के अधिकांश पहलुओं को प्रभावित कर रहा है। डिजिटलीकरण के युग में साइबर खतरों में भी चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। हमारे साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के दृष्टिकोण से ब्रिटिश उप उच्चायुक्त डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग और भारत के बीच सहयोगात्मक चर्चा हुई, जो भारत ब्रिटेन साझेदारी और डिजिटल सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में साइबर पीस द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित रही। तो वहीं डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग के द्वारा रांची विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का भी अनावरण किया गया, जिससे यहाँ के छात्रों को लाभान्वित होने का मौका मिलेगा। इस तरह के प्रयासों से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ झारखंड साइबर क्राइम के नाम से बदनाम था, वहीं आने वाले दिनों में साइबर सुरक्षा के नाम से जाना जा सकता है। डॉक्टर फ्लेमिंग ने इसकी सराहना की और साइबर पीस द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अपनी यात्रा के दौरान बहुत सी चीज़ों के बारे में देख और सीख रहा हूँ, जिसमें झारखंड का साइबर सुरक्षा से जुड़ाव और साइबर सुरक्षा के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं में योगदान शामिल है। रांची विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा में पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर जोर देते हुए कहा कि रांची के साथ सहयोग की संभावना है। So this is my first visit to Jharkhand and therefore my first visit to the Cyber Peace Foundation. I've been learning a lot this morning from the team here about the work that's going on. Yesterday I learned about Jharkhand and the link to cyber security. Some not so positive, but definitely some positive, because this place is born out of here. And so I understand has been around actively working on cybersecurity for longer than the city that was my home for 5 years, Hyderabad, which also considers itself to be a cyber hub. But computer networks and data services underpin every aspect of our lives, from accessing government services and keeping in touch with friends and family, to ordering delicious food. Here in Jharkhand, of course, probably Indian food is the most popular, just like it is in my country, the UK. This is also true for the ambitious goals that my office, UK in India and UK in Calcutta, have set up to transform the UK-India relationship. These include increased trade, defence cooperation, interaction between talented young people, and work in the scientific and technology spaces, as well as health, with breakthroughs also depend on resilient cyber networks to be able to keep goods and information flowing, planes flying, and secure data sensitive. So we hope industry and academia in the UK and India will work even more closely together towards mutually beneficial collaboration. Towards this end, we have collaborated from the UK in Calcutta office with Cyber Peace earlier in this year on a project aimed at strengthening cybersecurity and resilience in the states of Jharkhand, Odisha, and West Bengal. So I'm really pleased that I'm here today and able to be doing the inauguration formally of the Cyber Studio. I really wish that this will continue to evolve and develop. It's a very, very important area of work. I think it's one that is the need of the hour. And my last message, since we have so much media interest, is that there's a possibility in collaboration with Ranchi University to study cybersecurity here. I think that is a really, really exciting and good opportunity. There's going to be more and more jobs in the future for the young people of Jharkhand in the space of working on cybersecurity, not just in Jharkhand, in India, and in fact, all over the world. More and more opportunities come. But here in Jharkhand, through Ranchi University, there is a course. I really urge anyone remotely interested to reach out. Either you can reach out through CyberPeace or reach out to the university to understand more about that opportunity. I very much commend studying that. People may not believe that there's a career in this space, but I can assure you there is. And that's something that you should really be considering if it interests you.
So I end with that message and thank you very much. साइबर पीस के संस्थापक मेजर विनीत कुमार ने कहा कि यहाँ साइबर सुरक्षा अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय होने से झारखंड ही नहीं बल्कि दुनिया भर में नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने साइबर पीस कैफे और साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर किन्हीं के साथ साइबर क्राइम होता है तो रिपोर्ट कर या साइबर पीस कैफे से संपर्क कर मदद ले सकते हैं। बहुत अभी ऐसा नहीं, अभी से बहुत सालों से झारखंड में और बल्कि झारखंड में ही हमारी शुरुआत हुई थी और अब धीरे धीरे अलग अलग देशों में हमारा प्रेजेंस हुआ, बट रांची हमारा बेस रहा है। बट अभी देखा गया हाल ही के दिनों में कि किस तरह से झारखंड का एक अलग छवि प्रस्तुत की गई है जामतारा के कारण, जबकि आप ऐसा नहीं है कि जामतारा ही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इस तरह के साइबर क्राइम हॉटबेड आ चुके हैं, लेकिन अभी भी जामतारा को रेफरेंस किया जाता है कि झारखंड वो ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस तरह के अपराध होते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि जो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो अभी हमने रांची यूनिवर्सिटी में इस्टेब्लिश की, साइबर पीस फाउंडेशन की टीम जो यहाँ पे काम करी, या फिर ये कैफ़े जहाँ पे आप जिसका आज एक अनवीलिंग हुआ है आप लोग के सामने, इससे हम एक इकोसिस्टम दें लोगों को कि ये पहले एक बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है कि किस तरह, जैसे मैं शुरुआत किया मेरे लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं था झारखंड में स्टार्ट करने के साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए, तो अब इसके तहत हम प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। साइबर स्पेस में बहुत स्किल शॉर्टेज है यहाँ पे, तो यहाँ के बच्चों को स्किलिंग सिखाना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी में। और तीसरा जो मेजर उद्देश्य कहूँगा कि झारखंड की छवि जो साइबर क्राइम के नाम से जानी जाती है उसे साइबर सुरक्षा के नाम से जाना जाए और इस स्टेट को एक ऐसा देखा जाए कि साइबर सुरक्षा का ये गढ़ है, तो उसके तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं और ये इसलिए हमने इस तरह के सेटअप्स हमने स्टार्ट किए हैं। ये जो कैफ़े आप देख रहे हैं, कैफ़े में साइबर सुरक्षा पे तो काम कर ही रहे हैं हम, साथ ही ई स्पोर्ट्स करके अब ओलंपिक्स में भी अब मेडल्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में एक नया चीज़ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ई स्पोर्ट्स, ई गेमिंग के थ्रू स्पोर्ट्स में स्किलिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ पे हम उन लोगों को भी, गेमर्स को भी हम रेडी करेंगे, स्किल्स सिखाएंगे और उन्हें रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर की वो रिस्पॉन्सिबल सुरक्षित कैसे रहें साइबर स्पेस में, उसके बारे में भी बताएंगे। संदेश बहुत ही सिंपल है जो मैं हमेशा देते रहता हूँ। अब जैसे अभी डीप फेक मेजर इशू बना हुआ है, आप लोग को भी पता चल रहा होगा, इससे कोई छोटा से छोटा इंडिविजुअल से बड़ा बड़ा प्रधानमंत्री तक इफेक्टेड है कि कोई भी इस तरह के एआई जनरेटेड एप्लीकेशन के थ्रू किसी का भी वीडियो ऑडियो मॉर्फ करके और कम्युनिटी में एक तरह से अनरेस्ट पैदा कर सकते हैं, लोग में बहुत कन्फ्यूजन पैदा कर सकते हैं उनके थॉट प्रोसेस में। तो यहाँ पे ये है कि आप जो भी करें, साइबर सिक्योरिटी का सबसे एक आसान चीज़ मैं बता दूँ कि जागरूक रहें, कि आपके आसपास जिस तरह के क्राइम हो रहे हैं उससे जागरूक रहें, किस तरह से क्राइम किया जाता है उससे जागरूक रहें, और अगर आपके साथ क्राइम हो गया तो डरे नहीं, आप जाके रिपोर्ट करें। अब साइबर सेल्स हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है गृह मंत्रालय की, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर कहीं ना हेल्प मिले तो आप हमारे पास हेल्प के लिए आ सकते हैं और हमारी टीम पूरा प्रयास करेगी, क्योंकि हम एक NGO हैं, कोशिश करेंगे कि हम आपको मदद कर सकें। बाकी सिंपल टिप्स है कि आप अपने फ़ोन और जो भी अननोन स्ट्रेंजर से अगर कोई लिंक मिले या कोई मैसेज मिले या फोटोग्राफ मिले तो किसी पे ऐसे ही विश्वास नहीं करने लगे। जैसे आप फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग को आप जानते हैं तभी उनके साथ चीज़ें शेयर करते हैं, वर्चुअल दुनिया भी वैसे ही समझें। पहले लोग को जाने समझे, जाने कि अगला आदमी ऑथेंटिक है तभी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। पासवर्ड अपना जो है छोटा नहीं बड़ा लंबा पासवर्ड, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड, ऐसा पासवर्ड जो कोई गेस नहीं कर सके वैसा रखें।